हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हैलोजन 17 ग्रुप। हैलोजन फैमिली में फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन 9 प्लस 8, क्लोरीन 17 में 18 को जोड़ दिया 35 प्लस 18, ब्रोमीन से आयोडीन 53 एंड प्लस 32 एस्टेटीन, एटॉमिक नंबर 85। फाइंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। The fluorine atomic number 9, first cell 2, second cell 7 are 1s2, 2s2, 2p5. Outer cell carries a 7 electron. Then fluorine and other belong to 17 group, 7 plus 10. Chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, outer cell third. Bromine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, outer cell fourth. Iodine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5p, 4d10, 5p6, 5p5. Outer cell carries 7 electrons. Last one is astatine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 and 6p5. Outer cell is a 6 and electrons is a 7, s 2 electron and 6p 5 electron. The outer cell gradually increase second, third, fourth, fifth and sixth. And outer cell carries a 7 electron. Then general electronic configuration is ns2 np5. Outer cell n 2 to 6, 2 से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो जाएगी बेटा? 6 पर. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. फ्लोरीन किस पीरियड को बिलोंग करता है? सेकेंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ and astatine 6. Second is the general electronic configuration of halogen family member is 1s2, 2s, ns2, np5. N is a start from second to 6. Second point is the oxidation number. Fluorine atomic number is 9, 1s2, 2s2, 2p5. The outer cell carry only 5 electrons. Outer cell carry is 2s 2 electrons and 2p is a 5 electron. Then total is a 7. 2s2 before it 1s2, 2s2, next is a 2p5.
फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देन ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन इज -1। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसी की होती है तो वो कौन है? फ्लोरीन। देन फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ +1 और अदर, बट सेम टाइम अदर हैलोजन, एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। 17 फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज 8, थर्ड इज 7। Cl 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। Kl outer cell 3s2 3p5, 1 electrons unpaired, then oxidation number is +1, but same time outer cell carry 7 electron, it required is a 1 electron. When it take this electrons, then oxidation number is -1, and 3d always vacant because third cell carry 3 subcell, 3s 3p and also 3d. Then 1 electrons from the p take the energy and jump from 3p to vacant 3d orbital. Then total electrons unpaired here 1 2 3, then oxidation number is +3. If 1 electrons from px take energy and jump from low energy level 3p subcell to 3d subcell, then total electrons unpaired here is 1 2 3 4 5, then oxidation number is +5. Next is the 1 electrons jump from again 3s2 3d, then total electrons unpair 1 2 3 4 5 6 7, then oxidation number is +7. It means chlorine, bromine, iodine, chlorine, bromine and iodine. So +1 2 +7 oxidation number due to presence of Nd vacant orbital. But in case of fluorine 2d no possibility because second cell carry only 2s and 2p. सेकंड सेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी -1 है, लेकिन क्लोरीन एंड अदर हैलोजन सो +1 2 +7 ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज and ionic size are radial. In case of halogen up to bottom in a group, gradually atomic number is increased, then outer cell is also gradually increased, then
the atomic radii up to bottom is increased. Why it is increased? Because up to bottom in a halogen family, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, the atomic number is increased. Then outer cell gradually fluorine second, chlorine third, bromine fourth, iodine fifth, astatine sixth. न्यूक्लियस से आउटर सेल की दूरी बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक रेडिया भी इंक्रीज होगी. सेकंड इज आयनिक रेडिया. All is carry one electron their respected outer cell. All halogen carry 7 electron in their respected outer cell. It required only 1 electron. When it take this electron, as example, fluorine to fluoride, chlorine to chloride, bromine to bromide, iodine to iodide. Then when 1 electrons enter in outer cell, that electrons repulsion is increased and effective nuclear charge per electron decrease. Again, when 1 electrons enter in outer cell, then electron repulsion increase. Second, effective nuclear charge per electron decrease. Then atom to ionic radius is increased, and also up to bottom in a group ionic radius is increased. फ्लोरीन और फ्लोराइड आयंस में किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? फ्लोराइड की. क्लोरीन और क्लोराइड में किसकी ज़्यादा होगी? क्लोराइड की. क्यों होगी? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बढ़ेगा. दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज electron gain enthalpy. In a previous classes, 11th, classification of element, one is a topic, electron gain enthalpy. X is an isolated atom. Take 1 electrons and change into anions. X means halogen. Halogen in an atomic state take 1 electrons and change into halogen to halide ions. When 1 electrons enter in an outer cell, due to electron repulsion, the release energy is called electron gain enthalpy, and this value is a negative. Up to bottom in a group, the distance from the nucleus to electrons is increased. Why it is increased? फ्लोरीन में सेकंड सेल है, क्लोरीन में थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ. तो जैसे जैसे अप टू बॉटम चलेंगे तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज होगा. तो जो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो रही है? थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन से. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? अप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीज. इसका क्या मीन्स निकला? इसका मीन्स निकला कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होना चाहिए? फ्लोरीन की. लेकिन होती किसकी है? क्लोरीन की. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज एंड क्लोरीन इज why the electron gain enthalpy of fluorine
लेस देन टू क्लोरीन। बट जनरली क्या कहा आपने, अप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीज। लेकिन यहां तो उल्टा है, किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। क्यों ज्यादा है, क्लोरीन के बाद फिर क्या होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। ऐसा क्यों है? इन केस ऑफ द फ्लोरीन आउट एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5 and case of chlorine outer cell is a third 3s2 3p5. In fluorine the atomic radii very small in a size in a halogen. When one electrons enter in a outer cell, एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा तब तो इंटर होगा। when one electrons enter in a outer cell second, the outer cell small in a volume carries a 7 electron, उसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। when one electrons enter in a second outer cell in fluorine the electron repulsion is higher. इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा रिपल्जन होगा, क्योंकि पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन छोटे से स्थान में थे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा तो उस रिपल्जन को न्यूट्रलाइज करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, -33 किलोजूल पर मोल। बट इन केस ऑफ क्लोरीन the electron gain enthalpy more than to fluorine. Why? Because the electrons incoming enter in a third outer cell. The third outer cell carry 3s 3p and 3d subcell. इसमें 3 सबसेल होती हैं। then third cell volume is a large. थर्ड सेल का जो वॉल्यूम है वो सेकंड सेल से ज़्यादा होगा। then electron repulsion is less than compared to फ्लोरीन। उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम है, किससे कम है, फ्लोरीन से कम है। then electrons feel less repulsion then easily enter in a third cell and electron gain enthalpy is -349 किलोजूल पर मोल। इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगी। क्यों डिक्रीज होने लगेगी? अरे भाई न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर आएगा तो उतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर पर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आने वाला इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है। तो जो अट्रैक्शंस कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। इट मीन्स इन केस ऑफ द हैलोजन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन इज द मैक्सिमम, आफ्टर दैट फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन प्रीवियस क्लास द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी study in atomic form, atomic state, but electronegativity study in a molecular form. That is the difference between electron gain enthalpy and electronegativity. Here 2 is an example, 1 is a fluorine, second is a chlorine with hydrogen. The fluorine outer cell is a second. It means electrons near to nucleus. And case of chlorine outer cell is a third. Third cell slight away compared to fluorine. इसका मीन्स है कि फ्लोरीन की आउटर सेल सेकंड है
स्मॉल साइज का है, क्लोरीन की आउटर सेल थर्ड है, तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगी। किससे कंपेयर करें आप? फ्लोरीन से। देन न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन स्ट्रांगली अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल, बट द डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन टू फ्लोरीन। थोड़ा क्लोरीन की डिस्टेंस ज़्यादा होती है किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन के बीच में। Both fluorine and chlorine separately combine with hydrogen form hydrogen fluoride, and second is a hydrogen chloride. F is a small size electrons near to nucleus, then nucleus attract of this electron paired and electron shifting from center position to, यहाँ से कहाँ जाएंगे? फ्लोरीन की ओर। The fluorine atomic size is small, outer electron near to nucleus and also sharing electron pair. Then nucleus of fluorine strongly attract of sharing electron pair toward side, then electron pair shifting from mean position to toward side of Cl. इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो F पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन कैरीज अ पॉजिटिव स्लाइड चार्ज, बट द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन लेस देन टू F। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, लेकिन फ्लोरीन जितना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई न्यूक्लियस से आउटर सेल और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हैं, इसलिए उतने ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी होंगे। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना आएगा? पॉजिटिव स्लाइड चार्ज। द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजन फ्लोरीन अकॉर्डिंग पाउली 4.0, उससे कम किसकी होती है? क्लोरीन की। उससे कम किसकी होती है? ब्रोमीन की। और सबसे कम आयोडीन। द फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम ऑल नॉन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर बनाता है ना, और अमोनिया का नाइट्रोजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉइंट नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। In a previous classes 11th we are study of redox reactions. Two is the agent, oxidizing agent and reducing agent. The means of oxidizing agent is in the presence of the oxidizing agent. Example, सोडियम रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। Cl2 accept of this electron and change into chlorine atom to chloride ions। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। सोडियम का ऑक्सीडेशन। अरे भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहा है जो सोडियम को ऑक्सीडाइज कराता है। तो ये कैसा होगा? इट बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ऑक्सीजन इज oxidizing agent, chlorine is the oxidizing agent because in the presence of the chlorine sodium
donate of one electron and change into sodium to sodium cations। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो दूसरी स्पीसीज ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। अब आते हैं टॉपिक पर। इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस बात पर डिपेंड करता है? एसिडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की शक्ति पर डिपेंड करता है। हमारे कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा थी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन मैक्सिमम इन हैलोजन फैमिली। क्लोरीन के बाद किसकी है? फ्लोरीन की। तो जब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है तो क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, नहीं होता है। तो फिर कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल नॉन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। आपकी टेबल में जितने एलिमेंट हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। तो ये तो दिक्कत हो गई है। क्यों दिक्कत हो गई है? आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, लिख दी हमने। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर या एजेंट तो कौन है? फ्लोरीन है। किससे ज़्यादा है? क्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों है? दैट इज द टॉपिक। व्हाई द फ्लोरीन have strong oxidizing agent nature compared to chlorine। ऐसा क्यों होता है? अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की स्टडी कैसे की जाती है। हमें अच्छी तरह से पता है ऑल हैलोजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोनों कैसे हैं? मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना दिया। इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम ब्रेक कराएंगे। इसका मीन्स है द फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन X एंड X एटम। जैसे F2 F का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, Cl2 Cl का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। नंबर 2, अब जो X एटम बना है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस में कन्वर्ट होगा? X नेगेटिव में। नंबर 3, X जो निगेटिव है मीन्स हैलाइड आयंस है, उसको किस में घोलेंगे? वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस हैलाइड आयंस में। अब आपके पास 3 स्टेप है। मॉलिक्यूल्स टू क्या बनेगा? हैलाइड आयन इन एक्वस मीडियम। यानी यहां से लेके यहां तक आप स्टडी करेंगे तब बता पाएंगे व्हाई द फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन। देखते हैं। तो सबसे पहले है क्या? बॉन्ड इज अ ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नंबर 2, क्लोरीन मीन्स फ्लोरीन मीन्स any halogen accept the electrons and exchange of the energy is called electron gain enthalpy. Number 3, halide ions dissolve in a water and form aqueous halide ions, that is called hydration enthalpy. इन सबको आप जोड़ दें तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी नेगेटिवली गिव्स एनर्जी। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतने ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इन सब एंथैल्पी को यदि हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अब बेटा हम इसको बगल में लिखेंगे लेफ्ट साइड में ताकि आप समझ सकें कि हम क्या लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपने लिखा X2 क्या बनेगा? XX। नंबर 2 फिर क्या होगा? X होगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैलाइड में।
हैलाइड आयंस है, किस में डिजोल्व करेंगे? वाटर में। क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास है 2 एलिमेंट है, पहला फ्लोरीन है, सेकंड कौन सा है? क्लोरीन है, ठीक है ना। तो इनमें हमें सबसे पहले एक का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी चाहिए, फिर दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। One is a fluorine, second is a chlorine. The bond dissociation enthalpy of fluorine is a 79 kilojoule per atom and chlorine 121 kilojoule per atom. मॉलिक्यूल से एटम बनेगा, हम एटम की बात करेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप पहले देख चुके हैं, -333 किलोजूल। क्लोरीन -349 किलोजूल पर मोल। अब क्या आएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कितनी है? मैक्सिमम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्लोरीन मीन्स जब फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया उसकी साइज स्मॉल होती है, हाईली एनर्जेटिक आयंस होता है और साथ में उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर के बहुत पास जाके उसको मैक्सिमम पोलराइज कर देता है। हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी की स्टडी कैसे करते हैं? फ्लोराइड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन द पैटर्न द पॉजिटिव चार्ज toward side of the fluoride. The interactions between positive charge of water and negative charge of fluoride, जितना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। द अमाउंट ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड द इंट्रैक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फ्लोराइड जितना ज़्यादा सॉल्वेटेड होगा, जितना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शंस किसमें होगा? जिसकी साइज छोटी होगी। किसकी साइज छोटी है? फ्लोरीन की। देन the hydration enthalpy of fluoride maximum compared to chlorine. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई? इन केस ऑफ फ्लोरीन 769 एंड क्लोरीन -609। अब आपको बेटा एक लाइन बनाओ, बोल दे रहे जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। जब किसी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फ्लोराइड को हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, विलेन बना रहे सॉल्यूशन। फ्लोराइड डिसॉल्व इन अ वाटर, द मैक्सिमम इंट्रैक्शन बिटवीन द हैलाइड आयंस एंड सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इन फ्लोरीन। तो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगा उतनी एनर्जी निकलेगी। देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मैक्सिमम। एक ही चीज़ कम है, वो कौन सी है? देखो, आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा निकलती है। देखिए कंपेयर कर लीजिए, 515 381, बट एक चीज़ कम है, वो कौन सी है? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी कम थी वो किसने कंपनसेट कर दी? किसने कर दी? हाइड्रेशन एंथैल्पी ने कर दी। दूसरा किसने कर दी? अरे भाई, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है, उसने कर दी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बहुत अच्छा टॉपिक था इन अ प्रीवियस लेक्चर, क्लोरीन इज अ always ग्रीन कलर गैस, HCl इज अ कलरलेस गैस। ऐसा क्यों हम कह रहे? क्या होता है, आपका जो विजुअल रीजन है वह कितना है? 380 नैनोमीटर टू 700
60 नैनोमीटर। फ्लोरीन में आउटर सेल सेकंड है, यानी न्यूक्लियस के पास है, बॉन्डेड ज़्यादा है, मीन्स उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन किसमें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इसकी ग्राउंड स्टेट से आप चाहते कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। इसका मीन्स है कि आपको उस इंट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा जो किसमें था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में था। तो यहाँ पर किस रेडिएशंस को आप गिरने देंगे, जिसकी वेवलेंथ क्यों कह रहे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक कॉन्सेप्ट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की, इसका मीन्स है लो वेवलेंथ की रेडिएशंस को गिराएंगे। जैसे ही हम गिराते हैं तो वो किस कलर को एब्जॉर्ब करता है, वायलेट। आप लिखते हैं विबग्योर कि नहीं लिखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की। तो वायलेट कलर को उसने एब्जॉर्ब किया, और जब एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा बेटा, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ठीक है ना, तो यहाँ जो कलर का अपीयरेंस होता है, वायलेट कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो दिखाई क्या देता है आपको, वाइट कलर नहीं दिखता है, क्या दिखता है, ट्रांसमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट येलो। इसका मीन्स है कि जो हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं वो क्या करते हैं, कलरफुल फ्लेम देते हो, क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी आपका हो गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीक्वेंस क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मीन्स क्या है, अरे भाई बॉन्ड होता है ना एफ और एफ के बीच में, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल्स में जो एटम के बीच बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसको क्या नाम दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, ऐसा क्यों हुआ, फ्लोरीन को हम यहाँ क्यों ले गए, अरे इसलिए ले गए ना भाई कि फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंस था। दूसरा जिससे वो कॉम्बिनेशन कर रहा है वो दूसरा भी फ्लोरीन है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंस था, उनके बीच में बॉन्डिंग हो गए, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ गए, उनमें रिपल्जन रहता है। तो उस रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स को एटम में ब्रेक करने के लिए आवश्यक एनर्जी की वैल्यू कम होती है। कितनी होती है, 158.8 किलोजूल पर मोल। नंबर 2 सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। ब्रोमीन की कम क्यों हो जाती है, अरे भाई बॉन्ड न्यूक्लियस और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर रहेंगे, जब वो दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, आसानी से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। आयोडीन की और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होगा, किससे, न्यूक्लियस से। वाई 17 ग्रुप कॉल्ड इज हैलोजन। अरे भाई कोई बता सकता है कि हैलोजन क्यों कहते हैं 17 ग्रुप को, क्यों कहते हैं, सी सॉल्ट, वो क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, क्या नाम दिए हुए हैं, हैलोजन फैमिली। अब आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी।
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन। हमारा मीन्स क्या है? जिसको हमने कहाँ स्टडी किया था? मॉलिक्यूल्स टू एटम, एटम टू हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस टू इक्वस हैलाइड आयंस, दैट इज कॉल्ड वॉन हैवर साइकिल। अभी आपने वॉन हैवर साइकिल से क्लियर एक्सप्लेन कर दिया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कितना है? कितना है भाई? कितना होता है? सेकंड कौन है? ये फ्लोरीन लिखा है, सेकंड कौन सा है? क्लोरीन। कितना होता है? ब्रोमीन। कितना होता है? आयोडीन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन 2.87, क्लोरीन 1.36, ब्रोमीन प्लस 1.09 एंड आयोडीन 0.54। यानी ये सब वैल्यू कौन सी है? प्लस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज अ मैक्सिमम कितना है? 2.87 लिखा है बेटा, है ना, जिसका प्लस वैल्यू है। देन फ्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे मीन्स क्या निकल के आया? सिंपल मीन्स ये निकल के आया कि इस हैलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हैलोजन है ना, तो हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं, क्या क्या बनता है। रिएक्टिविटी विथ, ये तो आपने खूब देखा है, H2 प्लस F2 क्या बन जाएगा? 2HF। ये रिएक्शंस कहाँ हो जाती है? डार्क में। H2 प्लस Cl2 रिक्वायर्ड इज द सन एनर्जी, H2 प्लस Vr2 थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, H2 प्लस I2 थोड़ा हीट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और प्रिपरेशन है, आप काफ़ी जानते भी इनका, है ना। एक सिंपल चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। क्या क्या बना? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl गैस, HF लिक्विड फिजिकल स्टेट। HF गैस नहीं है, HCl गैस है, जबकि HCl तो बाद में आता है ना। जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, आप जानते हैं इनको, है ना। तो वैसे तो फिजिकल स्टेट चेंज होती है, गैस लिक्विड सॉलिड, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लिक्विड के बाद क्या आ रहा है? गैस। देखना पड़ेगा ना क्यों ऐसा हो रहा है। पॉइंट 1 फिजिकल स्टेट। देखते हैं, इन केस ऑफ HF, फ्लोरीन इज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। देन फ्लोरीन attract sharing electron pair toward side and carries a slight negative charge। उस पर नेगेटिव है तो इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर। सेकंड हाइड्रोजन इज आल्सो पॉजिटिव, F इज अ नेगेटिव। द पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड H बॉन्ड।
दिस इज अ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। HF के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये क्या है, लिक्विड है, बाकी क्या है, गैस है। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, HCl, HBr, HI और कौन होगा, HF। उल्टा है ना, क्योंकि HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और किसी में होती ही नहीं है, इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला क्या लेंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट, HCl, HBr, HF एंड HI। CBSE के एग्जाम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ हैलो एसिड आता है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, कौन ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन का ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, बॉन्ड लेंथ नंबर 3, धीरे धीरे की चीज पे आएंगे। बॉन्ड लेंथ का मीन्स क्या था, अरे भाई दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। नंबर 3, किसकी साइज ज्यादा होगी, HF, HCl, HBr एंड HI। अरे भाई आयोडीन बड़े साइज का है तो बहुत डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, HF की, उससे ज्यादा HBr, HCl एंड मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ इज HI। HI अप टू बॉटम इन अ हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होता है, अरे भाई आप जानते हैं क्या होता है, एटम की साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। जब साइज इंक्रीज होती जाएगी तो उसके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, HI की होगी। सबसे कम किसकी होगी, HF की होगी। फिर से लिख दे रहे हैं, HF, HCl, HBr और नेक्स्ट कौन सा है, HI। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोला बेटा आपसे हमने, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कोई बताएगा किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। बॉन्ड लेंथ किस सीक्वेंस में है, HF, HCl, HBr, HI। किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, HI की। तो जितना ज्यादा लेंथ होगी बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी कम एनर्जी खर्च होगी। तो सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, HI। HI क्यों, क्योंकि आयोडीन की आउटर सेल तो बहुत बड़ी होती है, कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सी होती है, 5th होती है, तो आउटर सेल 5th है, न्यूक्लियस से बहुत दूर होती है, तो आसानी से क्या होगा, वो बॉन्ड HI के बीच का ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगी, HI में। तो सबसे ज्यादा किसकी है, HF। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, HI। कौन सा मुश्किल से ब्रेक होगा, HF। HI बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम क्यों है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज
रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलो एसिड, कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, HF का कि HI का? कौन सा? HI का। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये आसानी से ब्रेक होगा तो H भी आसानी से देगा। इसका क्या मतलब निकला? HF, HCl, HBr एंड HI बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है? HI की। तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए HI आसानी से हाइड्रोजन देगा। कैसा बिहेवियर करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर किसका है? HI का। सबसे कम किसका है? HF का। अगला टॉपिक, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है? HF, HCl, HBr और HI। कौन होगा? अरे जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। किसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा? HI का। रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक कैरेक्टर एक ही चीज पर डिपेंड करेगा ना, किस पर? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? आप कह देंगे HI का। देन HF, HCl, HBr और लास्ट में क्या आएगा? HI। HI का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है तो यह स्ट्रॉन्गर एसिड है। किसमें? नॉन हैलो एसिड में। जितने भी हैलो एसिड आप जानते हैं उन सब में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? HF नहीं है। HF देखो कभी कभी ऐसा आता है HF होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? किसको होना चाहिए था? HF को। कौन निकल के आए? HI। हमने ऐसा क्यों कहा? HF होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट आता है फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F नेगेटिव में। H को रिलीज कर देगा तेजी से, और जब निकल जाएगा H तो क्या होगा? एसिडिक होगा। नहीं है। कौन है? HI है। क्यों है? क्योंकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो H भी आसानी से निकल जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? जरा उसकी बात कर लें। थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीन्स क्या है? अरे भाई गर्म करने पे आप ब्रेक नहीं हो। थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? Cl, Vr, HI। कौन सा है? HF। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि H और F दोनों की साइज स्मॉल होती है, ठीक है ना। तो HF मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर। कौन सी बात कर रहे हैं हम? स्टेबिलिटी की। कौन सी? थर्मल स्टेबिलिटी। इसका मीन्स है HF इज अ more stable compared to HCl, HBr and HI. Next topic is the oxide of halogen. लेकिन हमेशा ऑक्साइड नहीं होते हैं, फ्लोराइड भी होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? उसका कॉज देखते हैं। रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। O और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? F ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोराइड होगा। O और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्साइड होगा। कुछ ऑक्साइड के स्ट्रक्चर देखते हैं। वन इज Cl2O7।
Cl2O7। अगला देखते हैं Cl2O6। Cl2O6, Cl2O7, next is a Cl2O6. नेक्स्ट इज Cl2O, ऑक्साइड है ना। नेक्स्ट इज ClO2, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। क्या है ये? क्लोरीन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों करे? क्योंकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थोड़ा आगे चलते हैं। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन कहेंगे क्या? नहीं, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, OF2। नेक्स्ट इज O2F2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इनको क्या नाम देंगे हम लोग? ऑक्साइड की फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोराइड कहेंगे। क्यों कहेंगे? अरे भाई सिंपल है ना भाई, क्या बना है? फ्लोराइड बना है ना। F इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड कैसे बनाएंगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्या बन जाएगा? O2F2 बन जाएगा। टेम्परेचर क्या चाहिए? कौन सा? जहां पर एयर क्या होती है? कूल हो जाती है। कूल मीन्स एयर फ्रीज टेम्परेचर, ऐसा लिख देगा, ठीक है ना। अगला क्या है और देखते हैं। फ्लोरीन गैस को किस में पास कर दें? बेसिक मीडिया में। क्या बन जाएगा? अरे भाई NaF तो बनेगा ही, और क्या बचा है? OF2 बचा है, और क्या है? H2 है। देखिए बन गया। OF2 थोड़ा स्टेबल है, लेकिन कौन स्टेबल नहीं है? O2F2 स्टेबल नहीं है। OF2 is a stable, but OF2 is a least stable। इसका मतलब है ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो फ्लोरीन को देगा, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो। मीन्स क्या है इसका? कि वो आपको किसी से रिएक्ट करा के फ्लोरीन फ्लोराइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। न्यूक्लियर जो स्पेंट होता है उसमें फ्लोरीन होता है, सॉरी प्लूटोनियम होता है। तो जो फ्लोराइड में जब फ्लोराइड को आप रिएक्टिविटी करते हैं, P4 नहीं, प्लूटोनियम Pu है ना। जैसे आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लूटोनियम फ्लोराइड में। और प्लूटोनियम फ्लोराइड को क्या करेंगे आप? सेपरेट कर लेंगे। इसका मीन्स क्या निकल के आया कि प्लूटोनियम को यदि न्यूक्लियर फ्यूल से बचा हुआ जो प्लूटोनियम है उसको आपको सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? O2F2 का यूज कर सकते हैं। सेकंड, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उस न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज करते हैं हम लोग? O2F2 का। क्यों यूज करते हैं? अरे भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोटिंग एजेंट है ना, ये अनस्टेबल है, तो रॉकेट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज
स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा? आयोडीन के, उससे कम क्लोरीन के और सबसे कम ब्रोमीन के। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखते हैं। आयोडीन और ऑक्सीजन में दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो इस कंपाउंड में पोलर नेचर अच्छा होता है, इसलिए स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? क्लोरीन और ब्रोमीन से। इसलिए कंपाउंड स्टेबल होता है किसका? आयोडीन का। अगला क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। जैसे आपने Cl2O6 और Cl2O7 में देखा है। ब्रोमीन में दोनों ये चीजें नहीं हैं। कौन सी? ना तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, ना उसकी किसमें ज़्यादा डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है। तो ना तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेजर डिफरेंस आ रहा है कंपेयर टू आयोडीन, और ना कौन सा बॉन्ड बना सकता है ये? डबल बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? उसकी जो स्टेबिलिटी है वह आयोडीन और क्लोरीन से कम होगी। अब आते हैं ClO2 को कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। कौन? Cl2 पेपर इंडस्ट्रीज में, इसलिए इसको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए, सोडियम क्लोराइड को ले लिया, कौन सी गैस पास कर दी? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा निकल के आई थी? आयोडाइड मीन्स आयोडीन ऑक्साइड की। क्या होगा देखते हैं। रिएक्शंस होगी, क्या बन गया? Na2SO4। क्या बचा? ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, उसमें भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट टॉपिक ऑफ फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली। सबसे पहला मेंबर हमारा फ्लोरीन है, लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। पहले ग्रुप का जो ही मेंबर होता है वह एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। एबनॉर्मल का मीन्स क्या है? अरे भाई HF क्या है? लिक्विड है। HCl क्या है? गैस है। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों? वो जितने भी ग्रुप है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वह रेस्ट मेंबर के साथ थोड़ा एनोमली शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है रेस्ट एलिमेंट के साथ। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले नंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे भाई सब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इन सब की ज़्यादा होगी, और नीचे चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है। तो इस फ्लोरीन की ये जो भी आपका सेकंड पीरियड में मेंबर है फर्स्ट ग्रुप, हर ग्रुप का, उसकी हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्या लिखा है? आयोनाइजेशन। नंबर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। थर्ड डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट रहेगा? डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहेगा। और क्या रहेगा? स्मॉल इसकी साइज होगी, इसके आयन की साइज भी स्मॉल होगी। स्मॉल साइज चाहे हम किसकी बात करें, एटम की, या किसकी बात करें, आयंस की। और जो आयंस बनेगा उसकी साइज स्मॉल होगी तो उसका पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा, हाईली पोलराइज कर देगा सामने वाले को। इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो आपके सेकंड आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, 13, 14, 15, 16 और 17, तो इस जितने भी ग्रुप हैं उसमें सेकंड पीरियड में एलिमेंट है, चाहे वो आपका लिथियम हो, बेरिलियम हो, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
हियर इज फ्लोरीन। वो अपने रेस्ट एलिमेंट के साथ थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। कॉज क्या है? पहला हाई आयनस एंथैल्पी, सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है। स्मॉल साइज, चाहे वो एटम की करें चाहे आयंस की कहें, आयंस बोलेंगे तो पोलराइजेशन पावर उसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी? जिसकी साइज स्मॉल होगी आयंस की। तो इसका मीन्स है कि ये जो 1 2 3 4 5 और एक और होता है हायर हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी आयंस की? बहुत ज़्यादा होगी। किसकी? आयंस की। तो ये जो कॉज है, इस कॉज की वजह से उसका बिहेवियर रेस्ट ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा सा अलग रहता है ना। थैंक यू वेरी मच।